Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tude. In my last lecture, I have explained the different examples of the loops that are the for loop, while loop and the do while loop. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with the topic nesting and jumps in loops. So nesting in loops, हमारा nesting मतलब एक के अंदर एक हम लूप चेक कर रहे हैं एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग द डिफरेंट लूप्स. सो लाइक इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, नेस्टिंग इज पॉसिबल इन लूप्स टू. दे आर यूज्ड टू प्रिंट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न. हमें कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट करवाना है, सो वी यूज द नेस्टेड लूप्स. एक के अंदर एक लूप्स हम एग्जीक्यूट करवाते हैं. Here, the outer loop consists of number of rows and the inner loop controls the number of columns. Let's say हमारे एक प्रोग्राम में दो लूप्स हैं. So, हमारा जो फर्स्ट लूप है, it will control the number of rows and the second loop है, it will control the number of columns. Let's understand it in brief with the help of an example program. So, we have to write a code to print the following pattern. You can see on the screen a pattern is given. अब हमें ये pattern with the help of set of instructions print करवाना है. Here we are on our platform that is Turbo C++. अब हमें एक pattern print करवाना है with the help of nested loops. So हमें दो loop यहाँ पे अपने execute करवाने हैं and according to them हमारा एक pattern print होगा. So let's start with including all the required files that are the stdio and the conio1. After including the required files, we create our main function of void data type. And we start with our curly braces and will write all the executable part here. Let's say I am declaring a loop variable. अब हम दो loop यहाँ पे use करेंगे, so we have to declare the two loop variables. Let's say I am declaring both the loop variables of integer data type, number one I and the second is j. हमारा जो I loop variable है, it will control the number of rows and जो j loop variable है, it will control the number of columns. As usual, after the initialization and declaration, we apply the clear scr function, which clears the screen at the runtime. अब हमें यहाँ पे यूजर को कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना या फिर उससे कोई भी एक वैल्यू नहीं लेनी. सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद आवर लूप एंड वी विल यूज द फॉर लूप. हियर अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्स, पहले हमें एक लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा. सो आई हैव इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल आई टू द वैल्यू 1. आफ्टर दिस वी हैव टू चेक आवर कंडीशन. अब कंडीशन हम चेक करेंगे वेदर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 and will increase the loop variable value by 1. This is our first loop which will control the number of rows. In the body of the loop we will start applying the second loop, but उस loop execute होने से पहले हमारा जो control है वो next line में अपने आप ही jump हो जाना चाहिए. So here we will use the next line tab, that is the \n. And we will write the second loop that is for and will initialize the loop variable j to any value. हमने j नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1. आफ्टर इनिशियलाइजेशन वी हैव टू चेक द कंडीशन. अब यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी वेदर j इज लेस देन और इक्वल्स टू i, जहां पे हमारा i वेरिएबल है नंबर ऑफ रोज के लिए. तो हमारी कंडीशन होगी कि जो हमारा कॉलम है वो रो से इक्वल है या फिर उससे छोटा है. एंड हेयर ऑल्सो वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल j बाय 1. इन द बॉडी ऑफ द लूप ऑफ सेकंड फॉर लूप वी विल राइट द printf स्टेटमेंट which will print our asterisk character. And we are done with our body of the loop of second loop and will close the curly braces of our first loop also. At last we will apply the getch function and will close the curly braces of our main function. So let's understand the execution process कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कैसे प्रिंट होगा. So first of all we have declared the two loop variables I and j, जहाँ पे हमारा I कंट्रोल करेगा number of rows and j कंट्रोल करेगा number of columns. Now we have executed our first loop that is I is equals to 1. हमारी वैल्यू I में आ गई 1 and the condition चेक होगी whether I is less than or equals to 5. यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हुई कि 1
5 से छोटा है या फिर इक्वल टू है, हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड द कंट्रोल विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। दैट इज हमारा कंट्रोल न्यू लाइन में आएगा एंड सेकेंड लूप को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज वेदर j इज लेस देन और इक्वल्स टू i। अब j में वैल्यू है 1, i में भी वैल्यू है 1, हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड वी विल प्रिंट दिस एस्टेरिस्क कैरेक्टर। एक बार हमारा यहाँ पे अब एस्टेरिस्क कैरेक्टर प्रिंट हो गया। अगेन द कंट्रोल विल जंप टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन एंड द लूप वेरिएबल i विल इंक्रीज टू वैल्यू 2। अब हमारी वैल्यू हो गई 2। कंडीशन चेक हुई वेदर 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। हमारी कंडीशन दोबारा ट्रू हुई एंड नेक्स्ट लाइन में हम जंप कर गए। नेक्स्ट लाइन में जंप करते ही हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ एंड चेक हुई कंडीशन वेदर j इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड हमारा ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ये इंक्रीमेंट होएगा वेरिएबल j ने फिर चेक करी वैल्यू वेदर 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू i। यहाँ पे हमारी फिर से कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पे एक और बार एस्टेरिस्क कैरेक्टर अपना प्रिंट करवाएंगे। सो फर्स्ट लाइन में हमारा एक एस्टेरिस्क आया, फिर हमारा कंट्रोल सेकंड लाइन में जंप कर गया एंड उसने 2 बार एस्टेरिस्क कैरेक्टर प्रिंट करवाए एंड दिस विल गोज ऑन अंटिल आवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कौन सी कंडीशन? वेदर i इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, क्योंकि जब ये कंडीशन हमारी होएगी फॉल्स उसके बाद ही हमारा कंट्रोल ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होएगा एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप टू द गेट ch स्टेटमेंट। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट विंडो। हियर वी गेट आवर मैसेज डिस्प्लेड, दैट इज आवर पैटर्न। जो भी हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस हमें एक पैटर्न मिल गया एंड हमें यही पैटर्न प्रिंट करवाना था। सो विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड लूप we can print any type of pattern by providing some set of instructions. Now what are these jumps in loops? So sometimes while executing a loop it is required to skip a part of the loop or to exit loop as soon as a certain condition occurs. Which means अगर हमें कोई भी statements skip करवानी है या फिर किसी loop से बाहर आना है, so we can use the jumps in loops. So C language permits jump from one statement to another within a loop as well as jump out of the loop. So there are 2 types of jumping loops. Number 1, break statement, and second one, the continue statement. Let's understand each of them in brief one by one. So break statement. In C, this statement is used to terminate the execution of the nearest closing loop in which it appears. तो हमें ये ब्रेक स्टेटमेंट अलाउ करती है कि किसी भी एक लूप से हम बाहर कूद के आ जाएं। इट अलाउज टू मेक एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम अ लूप। जब चाहे तब हम अपने लूप से बाहर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, द कंट्रोल पासिस टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप एंड दिस कीवर्ड अलाउज अस टू एग्जिट ओनली अ सिंगल लूप। लेट्स से हमने एक प्रोग्राम बनाया एंड उसमें हमने बीच में कहीं पे भी अपनी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। सो जैसे ही हमारा कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट के पास आएगा तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारी स्किप हो जाएंगी एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द नेक्स्ट फॉलोइंग और द फर्दर स्टेटमेंट्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज दैट कि ये बस हमें एक सिंगल लूप से बाहर आने की परमिशन देता है। वी कांट एग्जिट फ्रॉम मोर देन वन लूप। अगर हमें एक से ज्यादा लूप के बाहर आना है सो वी हैव टू यूज आवर गो टू स्टेटमेंट्स, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा रखा है। लेट्स सी इट्स सिंटैक्स। हियर वी हैव एडेड अ ब्रेक स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम आफ्टर दिस इफ कंडीशन। जैसे ही हमारी ये कंडीशन होगी ट्रू, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा and our control will directly jump onto the statement X. ये जो हमारा while loop चल रहा है ये कंट्रोल इसके बाहर आके जंप कर जाएगा and will execute the statement X. The second jumping loop is the continue statement. Unlike break statement which causes the loop to be terminated, the continue statement causes the loop to be continued with the next iteration after skipping any statement in between. हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था कि कोई भी एक लूप जो है उसमें से हमें बाहर ले आता था, लेकिन ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप करवाता है
and executes the further statements. When continuous statement is encountered, the rest of statements in the loop are skipped and the control is unconditionally transferred to the loop continuation section. Here this continuous statement works according to the loop. अब वो for loop है, while loop है या फिर do while loop है, ये अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. Let's say in while and do while loop, continue causes the control to go directly to the test condition, and in for loop the continue statement causes the control to go to the increment decrement section of the loop before the test condition. Let's say हमने अपने प्रोग्राम में इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का कहीं पे भी यूज किया, तो जैसे ही कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास आएगा इन while and do while loop, the control will directly jump to the test condition. But in for loop जब भी हमारा कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास आएगा, so it will directly jump on to the increment and decrement section of the loop. Let's see its syntax. Here's the syntax of while loop where the test expression is evaluated and in the body of the loop we have applied our continue statement. So जैसे ही यहाँ पे हमारा कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास आया, it will directly jump on to the test expression. अगर यहाँ पे होता for loop, तब हमारा कंट्रोल सीधा चला जाता इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन पे. बट इन while and do while loop हमारा कंट्रोल जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन के पास. सो बेसिकली जो हमारी ये जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमारा एक अनकंडीशनली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है. या तो हमें किसी लूप से बाहर आना हो या फिर कुछ स्टेटमेंट्स स्किप करवानी हो. सो देयर वी यूज दीज जंप स्टेटमेंट्स दैट आर द ब्रेक स्टेटमेंट एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट. So today we have covered the nested loops and the jump statements. In my next lecture, I will come up with the example programs of these nested loops and the jump statements, which will help you in understanding the concept of these nesting more clearly. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.